शहर के वीरभद्र नगर में गार्बेज प्लांट को लेकर आज फिर हुआ हंगामा। इलाके की आवाम प्लांट हटाने का कर रही है मुतालिबा। आज सुबह इलाके की आवाम ने प्लांट पर जमा होकर कॉरपोरेशन कमिश्नर से राब्ता कर ये बताया कि यहाँ प्लांट न बनाया जाए। इस मौके पर खवातीन भी कसीर तादाद में जमा थीं। इसके अलावा AIMIM के लतीफ़ खान पठान, कॉरपोरेटर अजीम पटवेगर और इलाके के कॉरपोरेटर बाबाजान मतवाले वगैरह मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट। ಈ ಏರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೀರಭದ್ರ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2007 ಅಥವಾ 2006ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನಧಿಕೃತವಾದ 14ರಿಂದ 15 ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮೆಘನ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಹಕಾರದಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ತೆರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿದದ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಝೊಪ್ಪಡಿಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಅದು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ದೊಡ್ಡದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ತಿ ಭಾಳ ಗರೀಬ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇವೆ. ಜಿನ್ನ ಬೆಳಗಾಮದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಪೋ ಅದನ್ನು ಕಚರಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಈಗಾದರೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೂ ಅಂದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೋಮವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅದಾವಿಲ್ಲ, ಅದಾವಿಲ್ಲರಿ ಹೇಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಚರಾ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತೇಶ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಂಬೆ ಸ್ಕೀಮದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೋಪಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂಬೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜುಬಾಜು ಜಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಜನ ಬಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಲಮ್ ವಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಕಚರಾ ತಂದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳೇನಿಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದು ಇದು ವಿನಂತಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡದ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು 6 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬಂದಿದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂದ ಸೀದಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕದಾರ. ಅವ್ರು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಲೈನ್. ಮುಜಾವರ್ and Mahdiwale and corporation. Mujawar and Mahdiwale is the owners and tenant. ರೈಯತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಲಕರದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೇವನೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಲೋ ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ बोलो। पहले तो सिटी रेसिडेंशियल एरिया में जो ये कचरा है ये फेंक नहीं सकते। अगर जोर ज़बरदस्ती से अगर मनमानी करे रहेगा तो उसके लिए उसका जवाब जो है बहुत जल्दी उनको मिलेगा। अगर उनको रखना ही है, फेंकना ही है, तो कॉरपोरेशन की जो दूसरी जो और भी जगह बहुत है वहाँ जाके फेंक सकते हैं। और ये जगह जो है डिस्प्यूट में है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है शायद इसका। इसके लिए देखेंगे, एक बार कॉरपोरेशन कमिश्नर को मिलकर बात करेंगे। अगर उसके बाद अगर जोर ज़बरदस्ती करना चाहते रहेगा तो अवाम है, उसका अवाम जवाब नहीं। उन्होंने तो बोल दिया कि हम फोर्स लगा कर फोर्स लगाने के बाद में यहाँ भी फोर्स लगाएंगे हम लोग।
पुलिस फोर्स वो लगाएंगे तो लोग भी यहाँ जमा होंगे, पब्लिक का फोर्स जो है हम लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो होना है। कॉरपोरेशन जब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है तो इसके पीछे सियासी हाथ हो सकते हैं। ये जो है उनको जो है नशा हुआ है, सरकार का एक नशा है। हाँ, वो नशे में बोल रहे हो, पावर का नशा बहुत हुआ है। इंशाल्लाह वो पावर का नशा कम होएगा। आज ये वीरभद्र नगर अशोक नगर के बीच में रहने वाली महानगर पालिका की डिस्प्यूट लैंड, इसका सर्वे नंबर शायद 114 सर्वे नंबर। ये 1942 से लेके जब मुंबई 1015 जब मुंबई प्रांत जब था, जब महानगर पालिका की तरफ से 800, उसने नगर पालिका थी, 871 ज़मीन जब एक्विशन किया गया, उसका एक्विशन नंबर है 138। उस वक्त के अंदर ये ज़मीन 4 एकड़ 4.5 एकड़ ज़मीन को 7.5 एकड़ ज़मीन को छूट गई, क्योंकि माड़ी वाले एंड मुजावर, माड़ी वाले रैयत मुजावर मालक रहने की वजह से इस ज़मीन को उन्होंने एक्विशन किया नहीं है। ये पेंडिंग रही हुई ज़मीन है। कई सालों से यहाँ पे एसी में केस चलता रहा। आज एसी की तरफ से केस मालकों के अगेंस्ट हुआ, महानगर पालिका के फेवर में होने की वजह से हाई कोर्ट के अंदर टाइटल सूट के लिए केस पेंडिंग है। इस ज़मीन की हालत मैंने बताना चाहता। एक जब हम कारपोरेटर थे उस टाइम 2007 या 2007 के दौरान में 2007 के अंदर यहाँ पे इलीगली इक्विपमेंट हुआ था। उस टाइम मेघनगर कमिश्नर थे। यहाँ के अवाम की तरफ से यहाँ झोपड़ी बनने का नको इलीगली यहाँ पे हो रहा है बोलकर जब महानगर पालिका को सपोर्ट करके यहाँ की झोपड़ियों को हटाया गया था। ये भी यहाँ का एक इतिहास है। आज जो काम होने जा रहा है, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट करने के लिए उन्होंने जो यहाँ पे स्कीम जो रही जा रही है, वो जो स्कीम होना चाहिए बेलगाम के अंदर, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी हमें ये बस्ती जो है स्लम की तरह बस्ती यहाँ बसी गई है, उसके अंदर अगर ये चीज़ को लेकर कर यहाँ महानगर पालिका पूरा बेलगाम का कचरा अगर लेकर के अगर यहाँ पे डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो पहले से स्लम है इसको डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे वाटर ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आता है। ऐसे में अगर ये कचरे का मामला हो गया तो यहाँ पे बीमारी का बहुत बड़ा मामला आने वाला है। इसलिए यहाँ के आवाम की एक खास करके मांगनी है कि ये प्लांट को यहाँ पे राबा नहीं जाए, यहाँ पे इसका इंस्टॉल ना हो। अगर हमको सब बेलगाम वाले लोगों के लिए ये रिसाइकलिंग का होना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका के जो एक्सटेंसिव एरिया के अंदर बहुत से जगह हैं अभी भी 7 एकड़ जो पड़ा हुआ है जो ओल्ड जुने बेलगाम के अंदर, आज वो स्कीम वहाँ भी हम प्राप्त सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम 50 साल का कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी तक वो रिसाइकलिंग नहीं हुआ है। इतनी बड़ी ज़मीनों के लिए अब हम वो अगर प्लांट अगर वो 20 बाय मेरे ख्याल से 50 बाय 100 के अंदर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट लेकर के रखने के लिए कम से कम 3 से 4 एकड़ ज़मीन उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हार्ट ऑफ द सिटी ज़मीन रहने की वजह से एक तो बेलगाम को शोभा भी नहीं देता कि कचरे का डिपो बनाया जाए, और आजू बाजू जितनी भी बस्ती अशोक नगर हो या वीरभद्र नगर हो या रामनगर हो या ये महाराष्ट्र का सोसाइटी हो, पूरी की पूरी एक आबादी जो है पूरी मुस्लिम आबादी रहने की वजह से ये स्कीम को राबने की कोशिश मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में जहाँ पे मुसलमानों का एक अलग तरीके से छाप छोड़ने की नीयत करते रहते हैं, वहीं पे इन्होंने अपना ये स्कीम राबने की कोशिश कर रहे हैं। हर हालत में होने नहीं देंगे। ये अपने तरफ से भी है और पूरी आवाम की तरफ से मैं बात बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी ये लैंड भी डिस्प्यूट है। कोर्ट में रहने के बाद में एक केस को उन्होंने अभी तक सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है और उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मुसलसल आप एहतजाज इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, जुमा के दिन भी हुआ था, इसके बाद में शायद कॉरपोरेशन से बात भी हुई, उसके बाद रिएक्शन क्या है, उसका रिस्पांस क्या आ रहा है आपको? कॉरपोरेशन वाले क्या कहते हैं इस बात? नहीं, कॉरपोरेशन वालों की एक जो रवैया है अभी जो हमारे जो प्रेजेंट कॉरपोरेटर है बाबाजान मतवाले, उनके साथ में जो फ़ोन पे जब बात की तो अगर तुमने अगर कोऑपरेशन दी तो अच्छा है, नहीं तो हमने पुलिस का फोर्स लगा कि इस काम को हम अंजाम देंगे। लेकिन ये तरीके से बोलना मैं समझूंगा ये कमिश्नर को शोभा नहीं देता, क्योंकि पब्लिक की डिमांड के ऊपर ही हर काम हो जाता है। लेकिन पब्लिक जब एजिटेशन कर रही है तो उसकी रीज़न जानना भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए। बड़े कॉरपोरेशन के लैंड अगर होने के बावजूद भी हम ये काम को यहाँ पे अंजाम होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांगनी ये है कि यहाँ पे एक स्कूल हो या कोई एक हॉस्पिटल हो। अगर होता होगा तो हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए है। अगर तुम कचरे को डिपो बना के हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए हमारे हेल्थ के साथ में खिलवाड़ है ये। एनक्रोचमेंट फोर्सफुली वो करते आ रहे हैं। रिंग रोड का भी हमने देखा कि कई सारी जगह पर
कानून के दायरे छोड़कर भी इस तरह के काम किए जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि फोर्स के साथ हम इसको काम को जारी रखेंगे तो आगे तुम्हारे पास क्या मंसूबा होगा? नहीं, ये लैंड ऑलरेडी डिस्प्यूट है, उन्होंने कर ही नहीं सकते जब तक इसका टाइटल सूट क्लियर नहीं होता। या माडी वाली की हो सकती है तो इनाम मुजौर की हो सकती है, या मुजौर और माडी वाले आपस के अंदर तय कर ले सकते हैं कि इसके ओनर कौन होंगे। अगर कॉरपोरेशन की फेवर में जाती है तो हम तब आप करने देंगे? नहीं, हम तो स्कूल या हॉस्पिटल बनाने देंगे। हमारी मांगनी यही रहेंगी ये जगह के ऊपर। अब तो यहाँ पे स्कूल नहीं तो हम हॉस्पिटल ही मांगनी करेंगे। अगर इसके अलावा अगर कुछ करने की कुछ नहीं है तो अधिवेशन आ रहा है, अधिवेशन के अंदर हमने विधानसभा के सामने हम एजिटेशन बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या भाई एजिटेशन बैठने को तैयार है?